Where could reinvention take your business? Accenture, let there be change. Chandrayaan is already on its way. So what happens that once it is put in an elliptical orbit around the Earth, then gradually, you see, at different stages we can maneuver the through the maneuvers we can control the dimensions of the elliptical orbits around the Earth. The same thing would happen when we arrive at Moon, you see. Then also we would be controlling the dimensions of the elliptical orbits around the Moon. And so we can, in principle, we can increase or decrease the dimensions of the orbits. At the moment, what we have to do is we would be increasing and increasing and increasing the dimensions of the elliptical orbit until we reach at some stage where we can transfer our spacecraft onto the so-called transfer trajectory, which would go all the way up to the gravity of the Moon. So this is the first thing. And of course, the first thing, unless you are fully successful at the very first step, you can't be successful in your life. So this is the very first success, and it has been extremely successful. As I was just watching the director and the chief of this ISRO. They were after the launch. You see, they were all smiling, all applause all around, and so on. Because so first step has been fully successful. Now, actually, the second step of putting it into the transfer trajectory is rather crucial. And as somebody just mentioned physics, so being a professor of physics, I would mention that this is a very crucial step. You see what happens when we start from Earth, right from the very first moment when we take off from Earth, our aim is to arrive at a vacant point in space-time, where we suppose that the Moon is there, but actually Moon is not there at the moment. It's a vacant point in space-time. And it will arrive at our designated, at our aimed space-time point, which is currently vacant, slightly earlier than our spacecraft would arrive there. So our spacecraft at the moment, let us say just the propulsion module containing the lander and the rover. This would be on its way all the way. And once, so we have to very carefully and accurately calculate when do we put our spacecraft onto the transfer trajectory. You see, as long as you are in the elliptical orbit, you can maneuver and you can manipulate, control the size. If you like, you can even come back to Earth without any loss, without any harm, you see. But once we have to calculate. Our scientists, engineers, technicians, technologists, they are all very smart, bright people. So they accurately calculate what happens and when does the Moon arrive there. And we will arrive a short while before that moment, you see. So, and then, so that, you see, from the transfer trajectory, we have to enter the Moon's gravitational field. And you see, if the Moon is not there, it has not arrived there earlier than you, then there is no gravitational there. So there is no, you see. So if there is no host, what will happen? Your spacecraft, will just simply move away, and in a few moments, it will completely disappear, collapse, and destroyed into the space, you see. This is very crucial step. It's my humble request, sir, if you don't mind, can you speak in Hindi? Otherwise, no problem. You can speak in English. अच्छा ठीक है, नहीं मैं हिंदी में भी बोल सकता हूँ. तो देखिए इसको, लेकिन कुछ वर्ड्स इंग्लिश के यूज करूंगा. तो इसको ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में रखने के बाद हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल जब ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में चलता जाएगा मून की तरफ, हेडिंग टुवर्ड्स मून, तो वहां जो स्टेप का नाम होता है लूनर कैप्चर. सो मून की ग्रेविटेशनल फील्ड वहां प्रेजेंट होनी चाहिए,
ओरिजिनली जब हम यहाँ से चलते हैं तो हम एक खाली रिक्त स्थान के पॉइंट की तरफ चलते हैं, और उस रिक्त स्थान को हमने प्रिसाइजली कैलकुलेट कर रखा है पहले से कि हम उस जगह किस टाइम पर कितने दिन के बाद कब पहुंचेंगे। यू सी वी कैन एज लॉन्ग है जब तक हमारा स्पेसक्राफ्ट हमारी इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में है, हम इसे और घुमा सकते हैं चाहे जितने दिन। आपके पास मैं आऊंगी और डिटेल में इस पर हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये आज का टॉपिक है, क्योंकि हिंदुस्तान लगातार आगे बढ़ रहा है और स्पेस में एक से एक कीर्तिमान हम स्थापित कर रहे हैं, कामयाबी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे। चंद्रयान जो 3 है वो भी इस नजर से देखा जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी हुसूलियाबी होगी हिंदुस्तान के लिए अगर ये टेस्ट हमारा कामयाब रहता है। तो एक बड़ी उम्मीदें जो हिंदुस्तान से की जा रही है वो हिंदुस्तान पूरा करता हुआ नजर आएगा इस एक टेस्ट के जरिए। मेरा सवाल यहाँ पर हिमांशु से है। हिमांशु, चंद्रयान 2 को हमने देखा था जब लॉन्च किया गया था, तो उसका जो अचानक से जो लैंडर है उससे राब्ता टूट गया था, गायब हो गया था। क्या ऐसा एक फॉल्ट रहा होगा जिससे एनालाइज करके जो है चंद्रयान 3 में ये गलती ना हो, खास ख्याल रखा गया होगा? जी, तो जब चंद्रयान 2 हमारा लिफ्ट ऑफ करा था अर्थ से, और जब वो मून पे हमारी एंट्री कर रहा था, जब हमारा जो लैंडर था जब वो मून पे लैंड करना चाहता था, उस टाइम पे क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग हार्ड लैंडिंग हुई, जिसके वजह से जो हमारा लैंडर था वो बहुत मतलब एक धमाके के साथ मून के ऊपर अटक गया। उसके वजह से क्या हुआ, जो हम चाहते थे कि उसकी एक सॉफ्ट लैंडिंग हो, जो हमारा पर्पस यही था कि वो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो, बट बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर ग्लिच, ठीक है, बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर ग्लिच, कोई सॉफ्टवेयर के कुछ गलती थी या फिर हमारा फ्यूल खत्म हो गया था, तो इसके वजह से उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। चंद्रयान 3 में हमने क्या बदलाव करा है, हमने बहुत सारी चीजों को बदलाव करा है। हमने उसके अंदर जो नए इंस्ट्रूमेंट्स डाले हैं, जैसे कि TTC एंटीनाज हमने इस बार लगाए हैं, टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड एंटीनाज। सो उन एंटीनाज से हम देख सकते हैं, जान सकते हैं कि जो वेलोसिटी का डेटा है, मतलब जिस रफ्तार से वो जा रहा है। पिछली बार क्या हुआ था, चंद्रयान 2 में हमने कम्युनिकेशन खो दिया था, अब उसी के कारण क्या हुआ कि उसकी हार्ड लैंडिंग हुई और वो ऑलमोस्ट तबाह हो गया, ठीक है। बट जो अब हम चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 में हमने एंटीनाज लगाए हैं जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन ना टूटे। उसके अलावा हमने कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट ऐड करे हैं, जैसे वेलोसीमीटर, लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर, तो जिस स्पीड से वो जाएगा, अब जैसे कि मेरा जो लैंडर है वो इस तरीके से आएगा, ठीक है, मून के ऊपर, तो इसकी दोनों तरफ से एक स्पीड होगी, एक हॉरिजॉन्टली होगी एक स्पीड और एक वर्टिकली होगी। तो हमने वो कैलकुलेट कर रखा है कि वो कितनी स्पीड से जाना चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों के लिए कि हमारा कहीं सॉफ्टवेयर में कोई गलती ना आए, किस मिसकम्युनिकेशन में गलती ना आए, तो हमने TTC एंटीनाज हमने इस बार स्थापित कर रहे हैं। हमने उसके अंदर लेजर डॉपलर हमने वेलोसीमीटर डाला है। एक अदर इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम बोलते हैं ऑल्टीमीटर, ठीक है। तो ऑल्टीमीटर क्या करता है कि वो कितना दूर है, लैंडर कितना दूर है मून की सतह से, उस चीज को जानने के लिए हमने ऑल्टीमीटर भी लगाए। तो बहुत सारे चेंजेस हमने इस बार करे हैं, और इस बार के चेंजेस आई होप कि वो सक्सेसफुल रहे ये चीज, सो दैट कि हम एक सॉफ्ट लैंडिंग कर सके चंद्रयान 3 से, और ये इसको बना सके भारत का सबसे बड़ा मिशन, जो कि ये उसी राह में है, राइट। सो दिस वाज ऑल। एक्साइटमेंट नजर आ रही है आपकी आवाज में, आपके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मतलब कितने बेचैन हैं हिंदुस्तान के लोग इस एक टेस्ट को कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। जावेद से मेरा सवाल है। जावेद, लास्ट अगर हम चंद्रयान 2 को देखें तो बहुत ज्यादा खर्चीला वो प्रोजेक्ट था, मिशन था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन चंद्रयान 3 ये इसलिए और ज्यादा इस पर तवज्जो दी गई है क्योंकि तो बहुत कम बजट में है, पहले के मुकाबले स्वदेशी है। स्वदेशी के कॉन्सेप्ट पे अगर मैं आऊं तो कितना कामयाब होता हुआ इसे आप देख रहे हैं इस एक लिहाज से? जी, जैसा देखा जाए कि हमारा चंद्रयान 3 है जिसमें हमने अप्रॉक्स 1000 करोड़ 978 करोड़ हमने उसमें इन्वेस्ट किए थे, बट ये वाले चंद्रयान 2 में जो हम इन्वेस्टमेंट है हमारी वो 600 करोड़ है, ऑलमोस्ट 30% कम। इसका रीजन ये है कि चंद्रयान 2 में हमारा ऑर्बिटर, हमारा लैंडर, हमारा रोवर था। वकर चंद्रयान 2 में हमारा ऑर्बिटर जो परफेक्टली आज भी काम कर रहा है। अब चंद्रयान 3 में हमने वो ऑर्बिटर हटा दिया है, जिसकी वजह से हमारा बजट थोड़ा कम हुआ है, और इंडिया हमेशा से ही
कॉस्ट इफेक्टिव बजट्स में अपने मिशंस करने के लिए जाना जाता है, और वो ज्यादातर चीजें स्वदेशी यूज करता है, जिसकी वजह से उसको इसमें कॉस्ट कटिंग में बहुत इजी होता है। सेकंड ये है कि अब ये चंद्रयान 3 है, जितने भी खामियां हमारी चंद्रयान 2 में थी उनसे हमने सीखा। अपने चंद्रयान 3 से के अंदर हमने अपने लैंडर को काफी स्ट्रांग किया, हमने इसकी टेस्टिंग करी, हमने इसको हेलीकॉप्टर से गिरा के देखा, हमने इसको ड्रोन से गिरा के देखा कि अगर ये हार्ड लैंडिंग करता है तो हमारा लैंडर इस बार सुरक्षित हमारे सरफेस पे लैंड करे। और हमने इसके थोड़े वजन कम किया है। पहले हमारे 5 थ्रस्ट हमारे बूस्टर थे, इस टाइम पे हमारे 4 थ्रस्ट इंजन्स हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा इसका जो है थोड़ा वेट कम हो गया। इसके अंदर हमने फ्यूल कैपेसिटी बढ़ा दी, जिसकी वजह से अगर ये कभी ऐसा होता है कि हमें एक लैंडिंग के लिए हमें लोकेशन नहीं मिल रही है, तो ये हमारा लैंडर थोड़ा ज्यादा मूव कर सकता है एक अच्छी लोकेशंस को पाने के लिए। तो हमेशा से अगर ये सक्सेसफुल मिशन होता है तो ये इंडिया की तारीख में लिखा जाने वाला एक अहम हिस्सा होगा, और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के सामने हम इसको और इंडिया को एक अलग लेवल पे लेके जाएं, और बाकी 3 जो हमारे ममालिक हैं जैसे हमारा रशिया, चाइना और अमेरिका, इनके साथ हम सामने खड़े हों स्ट्रांगली। विक्रांत जी, मेरा सवाल आपसे है, लास्ट टाइम आपने बहुत अच्छे से ब्रीफ करने की कोशिश की थी, जो प्रोजेक्ट आप लेकर आए हैं उसके जरिए एक एसयूवी का आप जिक्र कर रहे थे और इसमें 6 पहिए आप बता रहे थे, ये कैसे वर्क करेगा? और मेरा एक सवाल और है इसी से जुड़ा हुआ, जब हमने देखा था लॉन्चिंग के टाइम पर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, एक दहाड़ हमें सुनाई दे रही थी, लेकिन जब ये लैंड करेगा तब इसकी स्पीड एक्चुअल कितनी रहनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हम कामयाब हुए हैं? जी, पहले आपने इसके बारे में पूछा तो ये एसयूवी की तरह मैंने कंपेयर किया, बिकॉज एक ऑल टेरेन व्हीकल होता है जिसमें 4 पहिए चलते हैं, इसमें 6 के 6 पहिए चलेंगे। और कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? मेरा सवाल ये, जब ये लैंड करेगा तो उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी होगी, और जब इसने आज लॉन्च हुआ है तो वो स्पीड कितनी थी, ये अलग अलग स्पीड्स कितनी मायने रखती है? हाँ, जब लॉन्च हुआ तो 10 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर आप पूरी धरती का चक्कर लगाएं एक पर्टिकुलर एक सेम ऑल्टीट्यूड पे, लो ऑल्टीट्यूड पे, अगर 400 किलोमीटर की हाइट पे आप अगर चक्कर लगाएंगे अर्थ का, इतनी तेजी से लॉन्च किया है कि आप 90 मिनट में धरती का पूरा चक्कर लगा लें। यहां से दिल्ली जाना खाली 3 सेकंड में या 2 सेकंड में, इतनी तेज। और इस पूरी स्पीड को इसलिए दिया गया ताकि हम थोड़ा सा आगे जा सकें। धीरे धीरे इसके अंदर जो प्रोपल्शन, एक और रॉकेट अपने आप में इंडिपेंडेंट रॉकेट प्रोवाइड किया गया, जिसको हमारे मित्रों ने प्रोपल्शन मॉड्यूल कहा गया, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने के लिए आपको ईंधन, केमिकल फ्यूल यूज करना पड़ता है, वहां पे कोई सड़क नहीं बनी हुई, तो उसको यूज करते हुए इसकी गति और नीचे दी जाएगी ताकि और आगे जाता जाए। जैसे जैसे आगे जाएगा तो हम चंद्रमा अभी यहाँ पे तो अगर मैं जंप करूंगा धरती के ऊपर ही लौटूंगा, लेकिन एक ऐसी जगह आ जाती है जहां पे चंद्रमा की ग्रेविटी ज्यादा तेज है अर्थ से, तो वो है चंद्रमा के जस्ट 60,000 किलोमीटर के अंदर। जब आपका यहां से छलांग लगाई हमने, धीरे धीरे 40 दिन के अंदर हम लोग 1 महीने के अंदर लगभग वहां पहुंचे। मून उसको कैप्चर करेगा, हम लोग अपनी स्पीड स्लो करेंगे और फिर लूनर ऑर्बिट में आ जाएंगे, यानी कि मून पकड़ के मून उसके आसपास हमें अपने घुमाएगा। 1 किलोमीटर रह जाएगी, वहां से हमारे को अपनी गति को धीरे करना है और 2 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि लगभग यहां से लेकर धरती तक नीचे जाने में 2 पर सेकेंड की स्पीड, या ज्यादा से ज्यादा 3 मीटर्स पर सेकेंड ये झेल पाएगा कि अपनी लैंडिंग लेग्स की वजह से। हमारी गति रह जाएगी इसकी खाली 3 मीटर्स पर सेकेंड, जो कि एक छलांग लगाने के बराबर है। फिर भी झटकेदार है, लेकिन ये इतना संभाल लेगा लैंडर हमारा। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ा है। प्रोफेसर साहब, ब्रेक के बाद आपके पास में आऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग मेरे कुछ सवाल हैं जिनका आंसर मैं चाहती हूँ कि आप दें, तो एक छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। It was very suitable for the launching। हाँ, अगर वेदर खराब होता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हमारा जो अपोलो 13 था, तो अपोलो 12 का जो नासा का मिशन था, जैसे कि हमारा जो रॉकेट ऊपर जा रहा था तो स्टक हुआ था लाइटनिंग से 2 बार।
ठीक है, तो उसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। बट हमारा आज का जो चंद्रयान का जो लॉन्च हुआ था, आज का जो वेदर था, इट वाज वेरी नाइस, इट वाज वेरी सुटेबल कि हम चंद्रयान 3 लॉन्च कर पाए। 14 जुलाई 2023 नोट कर लीजिए, ये एक तारीखी लम्हा था आज जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आवाज है नहीं। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. भैया जी हमला, भैया जी 10 गोलियां ले ले। गोलियां नहीं रख जा, गोली। पर बाहर तो 10 लोग हैं। 10 हो या पूरी बस, अब तो बस 1 है तो डन है। इसको कोई वॉचो वॉच कराओ। जब वॉचो में मिले ढेर सारे ओटीटी ऐप्स एक ही प्लान में तो हर कोई बोलेगा वॉचो 1 है तो डन है। सारे पॉपुलर ओटीटी ऐप्स वॉचो ओटीटी सुपर ऐप पर 30 दिन फ्री, तो आज ही watcho.com पर लॉग ऑन करें। ज्योति, अब ये बैग क्यों उठा लिया? मम्मी मैं जस्सू के घर जा रही हूँ पढ़ने, क्योंकि कल पेपर है ना हमारा। बेटा ऐसे रोज रोज किसी के घर में प्रायोरिटी है। और अगर एक बार लैंड हो जाता है लैंडर यहाँ चांद के ऊपर, तो 14 दिन तक सरवाइव करना क्या इजी होगा या वो भी एक बड़ा चैलेंज होगा? नहीं, देखिए चैलेंज है, जो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक है। दुनिया तो ये देखती है कि आपने चंद्रमा के ऊपर उतरे कि नहीं उतरे, आपका फेल हो गया प्रोग्राम या सक्सेसफुल हो गया। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है सेफ लैंडिंग ऑन द मून एंड देन सेफ रोविंग ऑन द लूनर सरफेस। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। अब इसके बाद हम वहाँ पर देखिए कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी करने वाले हैं। जब वो डिसेंड करेगा वहाँ पर तो इट विल कीप कलेक्टिंग डाटा। एक तो जो हमारा रोवर है उसके पास 2 पेलोड्स ऐसे हैं, एक तो लेजर शूटर है, एक दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को शूट करेगा, एक लेजर रेडिएशन को शूट करेगा। तो उससे क्या होगा, वो सरफेस के ऊपर, वो मून की सरफेस के ऊपर गिरेगा, तो वहाँ से धूल मिट्टी जो कुछ उड़ेगा, केमिकल जो कुछ भी सरफेस से उड़ेगा, उसको हम एनालाइज करेंगे, उसकी स्पेक्ट्रल एनालिसिस हम करेंगे और उसको हमारे लिए डाटा कलेक्ट हो जाएगा। ये हमारे लिए एडिशनल है। लेकिन फर्स्ट थिंग है कि हम सक्सेसफुली सेफ लैंड किए कि नहीं किए, हमने उसके ऊपर सरफेस पर रोविंग की कि नहीं की। नहीं तो दुनिया उसको फेल मानती है और सक्सेसफुल मानती है, समझ गए। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें उसको सक्सेसफुल तो लोग तभी मानते हैं कि आपने सेफ लैंडिंग किया, सेफ रोविंग किया ऑन दी लूनर सरफेस। सेकंड है कि आपने उससे क्या हासिल किया। हासिल हमने जो करने वाले हैं ये 3-4 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो जो हमारे लैंडर के पास एक ऐसा नासा का वो इसमें लगा हुआ है पेलोड, जिससे हम अर्थ और मून के बीच की एग्जैक्ट एक्यूरेट डिस्टेंस डिटरमिन करेंगे। दूसरा, हम जो है एक्सो प्लैनेट्स की स्टडी, छोटे छोटे प्लैनेट। एक्सो प्लैनेट्स वो होते हैं जो अपने सोलर सिस्टम के सूरज से ना बहुत नज़दीक होते हैं ना बहुत दूर होते हैं। उनका टेम्परेचर हैबिटेबल सा होता है, जहाँ लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं, वहाँ पानी भी हो सकता है, इतनी ज़्यादा ठंडक ना हो कि लोग वैसे ही मर जाएंगे। ये तो पहला आस्पेक्ट है। दूसरा आस्पेक्ट जो आपने पूछा है उसका डायरेक्टली रिलेशन इससे है कि 1 लूनर डे इज इक्विवेलेंट टू 14 to 15 अर्थ डेज। हम जब वहाँ लैंड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं वहाँ का बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, जैसे हम डाउन कहते हैं, डाउन ऑफ द डे, बिल्कुल
फर्स्ट आवर में हम वहाँ पर लैंड करना चाहते हैं। इससे हमारे पास मून का पूरा एक दिन मौजूद हमें मिलेगा हमारी साइंटिफिक एनालिसिस के लिए, जो अर्थ के 14-15 दिनों के बराबर है। उसके बाद क्या होगा कि वहाँ पर रात हो जाएगी तो टेम्परेचर्स उस लूनर सरफेस पे, साउथ पोल के आसपास की हम बात कर रहे हैं, टेम्परेचर्स कैन गो एज लो एज -180 डिग्रीज। तो जो हमारे सोलर पैनल्स हैं, एनर्जी के सोर्स हैं, जो वो सब काम करना बंद कर देंगे। अब 14 दिन तक काम ही नहीं करेंगे। उसके बाद अगर 14 दिन के बाद फिर जब वहाँ दिन होगा, फिर 14 दिन रहेगा, हमारे अर्थ के 14 दिन, उनका एक दिन। तो अगर हमारे एपरेटस उस वक्त भी काम करता है, रोवर अब भी काम कर रहा है, तो ये भगवान भरोसे है, करता है तो हम उससे फिर कुछ और आगे फर्दर 14 दिन स्टडी करेंगे। अगर वो काम नहीं कर सकता तो हम नहीं करेंगे। और अगर हम किसी तरीके से इस लैंडिंग टाइम को मिस कर देते हैं तो लैंडिंग तो करना ही है, नहीं तो फिर अब हम इसको 14 दिन प्लस 14 दिन 28-30 दिन बाद लैंड करेंगे। तो फिर हम अगस्त के बदले सितंबर में लैंड करेंगे, क्योंकि वो तो हम कर सकते हैं। अभी जब तक हमारी चीज़ें एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में हैं अराउंड द मून, तब तक हमारे पास कंट्रोल है इसका। हम यहाँ अर्थ पर बैठ के उनकी ऑर्बिट्स की डायमेंशंस को मैन्यूवरिंग कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बार आप उतर गए, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ अवेलेबल है वही आप कर सकते हैं। ठीक है सर। विक्रांत साहब, लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगी मैं। हमने देखा जब लॉन्च हो रहा था चंद्रयान 3, तो हमने देखा कि जब वो रॉकेट से जब अलग हुआ, सेपरेशन की जो एक स्टेज थी, गोल्डन कलर्स में नजर आता है। आप जो मॉडल लेकर आए हैं वो भी गोल्डन कलर का है। वो जो एक लेयर थी विक्रम के ऊपर गोल्डन कलर की, वो क्या है, कैसे वर्क करती है, कॉन्सेप्ट क्या है? उसको स्पेस ब्लैंकेट कहा जाता है। और उसको सबसे पहले बात, कोई भारी चीज नहीं लेके जा सकते, क्योंकि फिजिक्स के लॉज के हिसाब से जितनी भारी चीज आएगी उतने ज्यादा आपको रॉकेट पावर बहुत ज्यादा लगेगी। तो एक हल्का सा पतला सा एक फिल्म होती है जिसको हम माइनर कहते हैं, उसके ऊपर एक गोल्डन कलर का कोटिंग कर दी जाती है, जिससे बहुत रिफ्लेक्टिव होती है। गोल्डन या सिल्वर कलर की दोनों तरह की रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है, बहुत हल्की रहती है। तो क्योंकि स्पेस में एक तरफ 100 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा जो बहुत ज्यादा है, और एक तरफ -100। तो अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गए तो भी ठीक नहीं है, बहुत कम हो गए तो भी ठीक नहीं है। तो ये जो गोल्डन परत है वो क्योंकि आप रिफ्लेक्टिव होती है, तो सारी हीट और इंफ्रारेड लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देगी। तो एक जो उसका टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे हमने इसको गोल्डन कलर किया इसीलिए ये दिखाने के लिए, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, ताकि इसका एक, इसमें स्पेसक्राफ्ट में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं बेसिकली। एक होता है थर्मल सिस्टम, कि अगर आपका टेम्परेचर सही नहीं है तो भी वो काम नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स को काम करने के लिए करेक्ट टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर आपका ज्यादा ठंडे हो गए, जैसे अभी सर बता रहे थे, तो वो काम नहीं करेगा। तो उसका राइट टेम्परेचर रखने के लिए हमने इसको बिल्कुल गोल्डन फॉइल में, कभी भी आप देखेंगे कोई भी सैटेलाइट वगैरह जो होती है वो गोल्डन कलर में करनी होती है। यहाँ पर ब्लैक कलर हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर के सन की लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे सोलर पैनल जो इसको एनर्जी देते, क्योंकि मून पे कोई एनर्जी का सोर्स नहीं, कोई पेट्रोल नहीं, तो यहाँ पे फ्यूल भी नहीं करेंगे, और यहाँ पे सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के इंस्ट्रूमेंट्स काम करेंगे वो भी लेके जा रहा है। तो इसके राइट टेम्परेचर पे रखने के लिए इसको ये सारी गोल्डन कलर किया गया है। ठीक है जावेद, आपसे जानना चाहूंगी, जो स्पेस के लिए जो नए लॉन्च होते हैं या इनोवेशंस होते हैं, क्या ये सिर्फ स्पेस के लिए है या हमारी जाती जिंदगी में या आम जिंदगी में इनका किसी तरह का रोल है? ब्रेक पर हम इस बात को डिस्कस भी कर रहे थे। जी, स्पेस मिशन का जो काम होता है सिर्फ ज्यादातर तो होता है कि हम स्पेस मिशन में अपने आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करें, पर साथ साथ आज के टाइम में आप देखेंगे, आप जो कैमरा यूज कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में कैमरा बनाया गया था, ये बनाया गया था सैटेलाइट्स में लगाया था ताकि वो इंफॉर्मेशन और आगे के पिक्चर्स को देख सके। बट आज के टाइम में आपके मोबाइल फोन पे कोई कैमरा है और आप कैमरा के थ्रू बात कर रहे हैं, तो ये सारे स्पिन ऑफ होते हैं। जैसे ISS में हम यूज करते हैं पैक्ड फूड, जिससे हमें एनर्जी ज्यादा मिलती है और जो ज्यादा वक्त तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं। और आज उस तरह का फूड आप देखेंगे हम हॉस्पिटल में यूज कर रहे हैं, हमारे मोबाइल फोन के अंदर कैमरा हो गया, हमारा फूड हो गया। आज के टाइम में हमारे ये आपका जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी एडवांसमेंट आ रही है सब स्पेस मिशन के थ्रू है। तो स्पेस मिशन सिर्फ स्पेस के लिए नहीं है, ये हमारे अर्थ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन होते हैं। हिमांशु, क्या सिर्फ ये 40 दिन का सफर है, इसको इस तरीके से देखा जाए, या वापस विक्रम को वापस मिलाना ये भी एक कामयाबी होगी, या फिर हम लैंड कर गए और तमाम चीजें हमने कलेक्ट करे, उसके बाद हम वापसी अगर नहीं भी कर पाते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है?
तो हमारा इस जो मिशन का जो पर्पज है वो सिर्फ लैंडर को मून पे लैंड कराना है और उस रोवर को बाहर निकालकर मून के ऊपर रोवर कराना है। हमारा जापान के साथ, जाक्सा के साथ, जापान स्पेस एजेंसी के साथ एक सैंपल कलेक्टिंग मिशन भी होगा जो चंद्रयान 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो उसके अंदर हम मून से निकाला हुआ रेगोलिथ, मून से निकाली हुई सोइल हम अपने पास लेकर आएंगे, वहां से निकाले हुए पत्थर हम उसके पास लेकर आएंगे। बट ऐसा फ्यूचर में होगा, ठीक है, जैसे चंद्रयान 4 या चंद्रयान 5 में। अभी के लिए हमारा जो मेन मोटिव है, हमारा मोटिव है लैंडर को लैंड कराना है और फिर हमें अपने रोवर को वहां पे रोविंग करानी है, देखना है क्या क्या प्रेजेंट है हमारे मून के ऊपर, वाटर मॉलिक्यूल्स किधर किधर हैं, कौन से केमिकल्स, कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है। तो मैपिंग ऑफ द मून तो होना ही है। उसके अलावा हम काफी सारी चीजें और कर रहे हैं इस वाले मिशन के साथ। हम अर्थ को देखे हैं, जैसे हम अर्थ पे खड़े होकर मून को देखते हैं, उसी तरीके से चंद्रयान 3 से बिकॉज ऑफ द शेप विच इज प्रेजेंट इन द प्रोपल्जन मॉड्यूल हम मून को देखेंगे, हम अर्थ को देखेंगे, हम अर्थ को, हम मून को देखेंगे वैसे अब हम जो चंद्रयान 3 है वो अर्थ को देखेगा मून से। तो विक्रांत साहब, क्या हम उम्मीद करें कि आज 40 दिन बाद हम ये जो प्रोजेक्ट आप लेकर आए एक बार फिर से इस पर डिस्कस करेंगे, ये हम उम्मीद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल। और क्योंकि अभी हम प्रोग्राम एंड भी, ये हम बिल्कुल जिस दिन इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा इवेंट होने वाला है, जिस तरह से नासा के लिए ह्यूमन लैंडिंग की, उस तरह से सारे टीवी की तरफ ही देख रहे हैं, जरूर इसको लेके आएंगे और सिंपल लैंग्वेज में हमारे दर्शकों को जरूर समझाना चाहेंगे। ये तो हमारा बहुत सौभाग्य होगा, अच्छी तरह से समझाएंगे। और क्योंकि प्रोग्राम का एंड की तरफ है तो मैं कहना चाहूँगा कॉलेज के स्टूडेंट्स क्यों मतलब इतना इम्पोर्टेंट है, तो हमारे को एक सोल्टा मिलने ने मैसेज दिया था, स्पेस इज योर फ्यूचर, गेट इन्वॉल्व। कॉलेज के बच्चों को तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने कॉलेज में सैटेलाइट्स बनाने देखें कि चंद्रयान जैसी चीजें साइंटिस्ट कैसे बनाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस विद। तो चलिए फाइनली कहा जा सकता है आज की इस सफल लॉन्चिंग के तहत कि अब चांद हमारा हुआ, इसकी हम उम्मीद करें। 40 दिन का ये सफर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल अपना कीमती वक्त देने के लिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम, आदाब। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। देख रहे हैं अब खत्म हुआ शायद। थोड़ा मिर्च मसाला तो ऐड करना पड़ता है। अभी नहीं, ये तो बंद कर दो रिकॉर्डिंग। नहीं, इसके करने तो 1 मिनट और करना। और दूध